کربلا کا میدان جہاں حسین کے خیمے خاموش کھڑے تھے اور دشمن کے جھنڈے آندھی کی طرح لہرا رہے تھے۔ نہر فرات بند ہو چکی تھی۔ پیاس کی پہلی آہ بچوں کے لبوں سے نکلی اور عباس نے مشکیزہ اٹھایا، نہر کی طرف بڑھے جہاں ہر تیر ہر تلوار بس ان کے سائے کی دشمن تھی۔ امام حسین نے اصحاب کو بلایا، فرمایا دشمن بڑھ رہا ہے مگر ہم حق پر ہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ 3 محرم ہے جہاں ہر لمحہ قربانی تھا اور ہر قدم تاریخ میں ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ پوری ویڈیو دیکھیے، 3 محرم کا ہر وہ لمحہ جو دل کو چیر دے گا اور روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ 3 محرم کی صبح کربلا کے سناٹے میں خاموشی سے اتر رہی تھی۔ رات کی تاریکی ابھی مکمل چھٹی بھی نہ تھی کہ امام حسین نے فجر کی نماز ادا کی اور سجدے میں دیر تک گڑ گڑاتے رہے۔ ان کے لبوں سے نکلنے والی آہستہ آہستہ سسکیاں جیسے آسمان تک جا رہی ہوں۔ کربلا کی فضا میں کچھ تھا، وہ کیفیت جو صرف شہادت کے سفر پر نکلنے والوں کے دل میں اترتی ہے۔ نماز کے بعد امام حسین خیمے سے باہر نکلے۔ دور افق پر گرد و غبار اٹھتا نظر آیا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر، حضرت زہیر ابن تین، حضرت عباس اور دیگر اصحاب نے بھی وہی منظر دیکھا۔ امام نے سر جھکایا، ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی طرف نگاہ بلند کی، جیسے دل ہی دل میں اللہ سے کہہ رہے ہوں، یا رب، یہ لشکر میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن تو جانتا ہے کہ میں نے حق کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد خبر پہنچی کہ کوفہ سے مزید فوجی آ رہے ہیں۔ عمر بن سعد نے یزید کے حکم پر لشکر کی تعداد بڑھانی شروع کر دی تھی۔ 3 محرم کو یزیدی فوج کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر چکی تھی۔ نئے آنے والے فوجی کربلا کے میدان میں داخل ہو کر اپنی اپنی پوزیشن سنبھالنے لگے۔ ان کے چہروں پر غرور، ہتھیاروں میں چمک اور زبانوں پر نعرے تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عددی طاقت کے زور پر وہ امام حسین جیسے نیک ترین انسان کو زیر کر لیں گے۔ امام حسین نے خیموں کے ارد گرد موجود تمام اصحاب کو بلایا۔ سب ایک دائرے میں جمع ہو گئے۔ امام نے فرمایا، اے میرے وفادار ساتھیو، دشمن کی صفیں بڑھ رہی ہیں، ان کے لشکر میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ ہمیں تعداد سے ڈرانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ ہم حق پر ہیں، اور حق وہ طاقت ہے جو قلیل کو بھی غالب کر دیتی ہے۔ حضرت زہیر بن کین نے کہا، مولا، ہم نے اپنے دل آپ کے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ اب دشمن کی تعداد کتنی بھی ہو، ہم آپ سے وفا میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی دوران امام کے ایک قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ یزیدی لشکر کی ایک نئی ٹکڑی نے نہر فرات کے قریب کی زمین پر قبضہ جما لیا ہے۔ نہر کے گرد پہرا سخت کر دیا گیا ہے۔ امام کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عباس کو بلایا، فرمایا، عباس، نہر فرات کی طرف جاؤ اور دیکھو کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ اگر ممکن ہو تو کچھ پانی خیموں تک لانے کا بندوبست کرو۔ بچوں کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، بزرگ کمزور ہو رہے ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ حضرت عباس نے اپنے ساتھ چند بہادر افراد کو لیا اور نہر فرات کی جانب روانہ ہوئے۔ جب وہ کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ سپاہی تیر کمان لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت عباس نے نہایت وقار سے آگے بڑھ کر ان سے گفتگو کی۔ ہم نہر سے صرف پانی لینے آئے ہیں، ہمارا کوئی جنگی ارادہ نہیں۔ تم بھی جانتے ہو کہ عرب کی روایت ہے کہ دشمن کو بھی پیاسا نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے خیموں میں عورتیں، بچے اور بیمار افراد ہیں۔ پانی دینا تمہارا اخلاقی فرض ہے۔ سپاہیوں میں کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل پگھلنے لگے، لیکن چند سرکش افراد نے ہٹ دھرمی سے جواب دیا، ہمیں حکم ہے کہ تمہیں پانی نہ دیا جائے، اگر ایک قطرہ بھی دیا تو سزا ملے گی۔ حضرت عباس نے اس نرمی کا جواب عقل سے دیا۔ وہ نہ لڑے نہ ہتھیار اٹھائے، لیکن ایک جگہ سے نہر کا کنارہ خالی دیکھ کر جلدی سے مشکیزیں بھر لیے، پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خیموں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ دشمن نے ان پر تیر بھی برسائے، لیکن حضرت عباس نے انہیں کامیابی سے بچا لیا۔ جب خیمے میں پانی پہنچا تو ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچوں نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پانی پیا
औरतों ने अपने खुश्क लब तर किए, मगर इमाम हुसैन ने फरमाया, पानी ज़ाया ना करना, अगले दिनों में यह बहुत कीमती होगा। इसी दिन के दूसरे पहर उमर बिन साद को इब्ने ज़ियाद की तरफ से एक ख़त मिला, जिसमें लिखा था, हुसैन इब्ने अली से नरमी ना बरती जाए, अगर वो बैत न करें तो पानी बंद कर दो, हमें उनकी कमज़ोरी का इंतज़ार नहीं बल्कि उनकी सरकशी का खात्मा चाहिए। ये ख़त उमर बिन साद के ज़मीर पर एक और बोझ था। उसने कुछ देर ख़त को हाथ में पकड़कर सोचा, फिर अपने सरदारों को बुलाकर मशवरा किया। कुछ ने कहा, हुसैन इब्ने अली से जंग आसान नहीं, वो रसूल का नवासा है। लेकिन ज़्यादातर ने कहा, अगर अमीर का हुक्म है तो तामील ज़रूरी है। उधर इमाम हुसैन ने हालात को देखते हुए खैमों की तरतीब दोबारा मुनज़्ज़म करवाई। हज़रत ज़हीर बिन क़ीन को एक तरफ पहरादारी की जिम्मेदारी सौंपी, हज़रत हबीब को दूसरे तरफ की हिफाजत दी गई और हज़रत अब्बास को इल्म सुपुर्द करके फरमाया, ए अब्बास, तुम हमारे अलम बरदार हो, जब तक इल्म बुलंद है हमारा हौसला बुलंद है। इसके बाद इमाम अपनी बहन हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और दीगर ख़वातीन के खैमे में गए। इन सब को जमा करके फरमाया, हम पर वक्त सख्त आने वाला है, मगर घबराना नहीं, सब्र और दुआ का दामन ना छोड़ना। अगर कोई आजमाइश आए तो अल्लाह को याद करना, तुम्हारी इस्तकामत ही मेरे आज़्म की ताकत है। हज़रत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा, भाई, जब आप हक पर हैं तो हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं, हम सब्र करेंगे जैसा हमारी माँ फातिमा ने हमें सिखाया। दिन के तीसरे पहर सूरज की तपिश में शिद्दत आ चुकी थी। करबला का मैदान जैसे दहकता तनूर बन चुका था। रेत पर कदम रखना मुश्किल था, मगर इमाम हुसैन के साथी किसी आतिश फशां से ज्यादा पुराज़्म और साबित कदम थे। इस वक्त दुश्मन का लश्कर मुकम्मल तौर पर मैदान में उतर चुका था। फौजी कमांदार अपने अपने दस्तों को सफ बंद करने में मसरूफ थे। कुछ सिपाही नहर फरात के अतराफ पहरा दे रहे थे, कुछ खैमों के सामने सफ आराई कर रहे थे और कुछ पहाड़ी टीलों पर बैठे तीर अंदाजों को हिदायत दे रहे थे। इमाम हुसैन के खैमे को मुकम्मल मुहासरे में लिया जा रहा था। इसी दौरान इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास, हज़रत ज़हीर और हबीब बिन मुज़ाहिर को खैमे के बाहर बुलाया और फरमाया, अब हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो तुम सबके सामने हैं। दुश्मन का रवैया बता रहा है कि वो हमसे गुफ्तगू नहीं, बस बैत या जंग चाहते हैं। हज़रत ज़हीर ने अर्ज़ किया, मौला, हमें गुफ्तगू की नहीं, कुर्बानी की तैयारी है। हम जानते हैं कि ये दुश्मन सिर्फ ज़बान से बात नहीं करेगा, मगर आपकी क़यादत में मरना हमारे लिए ज़िंदगी से बेहतर है। हज़रत हबीब बिन मुज़ाहिर बोले, हमने हर सांस, हर कदम, हर लम्हा है, बैत करो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। इमाम हुसैन ने बुलंद आवाज़ में फरमाया, हमने इज्जत की ज़िंदगी को चुना है, ज़िल्लत की बैत को नहीं। जाकर अपने सरदार से कहो, हुसैन झुकता नहीं। कासिद खामोशी से वापस पलट गया। ये ऐलान जंग की मानिंद था, मगर इमाम हुसैन ने न तलवार उठाई न हमले की तैयारी की। वो अब भी परअमन थे, क्योंकि वो किसी भी इक़दाम से पहले हुज्जत तमाम करना चाहते थे। इस मौके पर हज़रत अब्बास ने इमाम से इजाज़त ली कि दुश्मन के लश्कर से एक बार और बात की जाए। इमाम ने सर हिलाया। अब्बास अपने साथ चंद असहाब को लेकर उमर बिन साद के पास पहुंचे। वहां मौजूद सिपाहियों ने अब्बास को देखकर एक लम्हा को निगाहें झुका ली, क्योंकि अब्बास के चेहरे से अज़मत टपक रही थी। अब्बास ने उमर बिन साद से कहा, हम जंग नहीं चाहते। अगर यजीद से कोई ज़ाती दुश्मनी है तो बात की जा सकती है, मगर रसूल सवाल कूल के नवासे को ऐसे दबाना उस उम्मत की बदबख्ती होगी। तुम इस जंग से बाज आ जाओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। उमर बिन साद ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, ए अब्बास, मैं जानता हूं तुम और तुम्हारा भाई हक पर हो, लेकिन दरबार की सियासत मेरे हाथ बांधे हुए है।
अगर मैं पीछे हटा तो मेरी गवर्नरी चली जाएगी। अब्बास ने कहा, तो फिर सुन लो, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हुसैन सर दे सकता है मगर झुका नहीं सकता। ये कहकर हजरत अब्बास वापस आए और इमाम को मुकम्मल सूरत हाल से आगाह किया। इमाम हुसैन ने फरमाया, अल्लाह की कसम, हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर रास्ता इख्तियार किया। अब अगर वो सिर्फ जंग चाहते हैं तो हम अल्लाह के फैसले पर राजी हैं। शाम का वक्त करीब आ चुका था। इमाम हुसैन ने सब असहाब को इकट्ठा किया। उनके दरमियान बैठकर फरमाया, आज के बाद शायद हालात और बिगड़ जाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब अपने खेमे संभालो, बच्चों और औरतों को महफूज करो और अपने दिल मजबूत कर लो। हम कल नहीं जानते कि कौन साथ होगा और कौन मैदान में जा चुका होगा। तमाम असहाब खामोश थे, मगर उनके चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि सुकून था। वो जानते थे कि इनका इमाम उन्हें किसी सियासी खेल में नहीं बल्कि अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए तैयार कर रहा है। इमाम हुसैन खेमों का जायजा लेते हुए खवातीन के खेमे में दाखिल हुए। हजरत ज़ैनब, हजरत रबाब, हजरत उम्म कुलसूम और दीगर खवातीन बैठी थीं। इमाम ने फरमाया, बहन ज़ैनब, खेमों को मजबूती से बांध दो, रात को ज्यादा रोशनी न जलाना। अगर कोई गैर आ जाए तो बच्चों को पर्दे में रखना। हमें अल्लाह की रज़ा में अपनी कुर्बानी पेश करनी है, लेकिन नामूस नबूवत की हिफाजत सबसे बड़ा फरीज़ा है। हजरत ज़ैनब ने सर झुकाकर कहा, भाईजान, हमें किसी चीज का डर नहीं, आपके हौसले ने हमें पहाड़ बना दिया है। रात का अंधेरा छाने लगा था। दुश्मन के खेमों में तहकहे, शोर और फतह के ख्वाब थे, मगर इमाम हुसैन के खेमों में दुआ, कुरान और सुकून था। सब असहाब वुजू करके इबादत में मसरूफ हो गए। हजरत हबीब सूरह यासीन की तिलावत कर रहे थे। हजरत मुस्लिम बिन औसजा सजदे में गुम थे। हजरत अब्बास खेमों के गिर्द पहरा दे रहे थे। करबला की रात जैसे आसमान पर साया बनकर छा गई थी। 3 मुहर्रमुल हराम का दिन खत्म हुआ और रात अपने सुकूत में खौफ, उम्मीद और नूर की एक अजीब फजा लेकर उतरी। दुश्मन के खेमों में नींद, पहकहे और जंगी तैयारियों की बातें हो रही थीं, लेकिन इमाम हुसैन के खेमों में इबादत, दुआ, गिरिया और इस्तिग़फ़ार की सदाएं बुलंद थीं। इमाम हुसैन खेमों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। इनका दिल हर खेमे में मौजूद फर्द की फिक्र में था। वो एक एक चेहरे को देख रहे थे। किसी के लबों पर तस्बीह, किसी की आंखों में आंसू, किसी के हाथ में कुरान और किसी के दिल में बेकरारी। ये सिर्फ मुजाहिद नहीं थे, ये इश्क के परवाने थे। इमाम ने हजरत अब्बास को बुलाया और फरमाया, अब्बास, आज की रात खास है, पहरा सख्त कर दो। औरतों और बच्चों की हिफाजत सबसे मुकद्दम है। दुश्मन कोई चाल भी चल सकता है, तुम मेरे भाई ही नहीं, मेरे अलमबरदार भी हो। आज की रात इल्म तुम्हारे हाथ में रहे, ताकि कल हर दिल मुतमईन हो कि अब्बास जाग रहे हैं। हजरत अब्बास ने तलवार संभाली और जवानान बनी हाशिम को सफ बंदी का हुक्म दिया। हजरत अली अकबर, कासिम, ओनो मोहम्मद, अब्दुल्लाह बिन हसन और दीगर नौजवान खेमों के गिर्द पहरा देने लगे। रात की तारीकी में इमाम हुसैन खेमे से बाहर निकले, आसमान की तरफ निगाह बुलंद की और एक सजदे में चले गए। सजदे से लबों पर आहिस्ता आहिस्ता मुनाजात जारी हुई। ऐ मेरे रब, तू जानता है कि तेरे दीन को बचाने निकला हूं, न इक़्तिदार के लिए न दुनिया के लिए। मेरे बच्चे, मेरी बहन, मेरे असहाब, सब ने तुझ पर यकीन करके सब कुछ छोड़ा है। या अल्लाह, हमें वो साबित कदमी अता फरमा जिससे हम तेरे दीन के अलमबरदार कहला सकें। हजरत ज़ैनब इस मंजर को खेमे के पर्दे से देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू खौफ के नहीं बल्कि फख्र के थे। ये वो भाई था जिसने यतीमों का सहारा बना, मजलूमों की आवाज बना और आज वो अपने खून से दीन की आबियारी कर रहा था। हजरत ज़ैनब ने खेमे में जाकर औरतों को तसल्ली दी। फरमाया, आज की रात हमारी आजमाइश है, कल हमें और सख्त हालात का सामना होगा, लेकिन हमारा हौसला हुसैन है और हमारा सहारा अल्लाह ताला। तुम सब सब्र के साथ इबादत में मशगूल रहो। उधर दुश्मन की फौज में कुछ लोग तजब्जुब का शिकार हो रहे थे। कुछ ने आपस में गुफ्तगू की,
क्या वाकई हम रसूल के नवासे से लड़ने जा रहे हैं? क्या ये वही हुसैन नहीं जिन्हें नबी अपनी पुष्ट पर सवार करते थे? मगर उनकी आवाज़ें साजिशों, धमकियों और खौफ के शोर में दब गईं। 3 मुहर्रम की रात का एक और मंजर ये था कि इमाम हुसैन ने सब असहाब को खेमे के एक गोशे में जमा किया। चांदनी रात थी और हर चेहरे पर रोशनी बिखर रही थी, जैसे आसमान भी उनके चेहरों को देख रहा हो। इमाम ने फरमाया, मेरे साथियों, शायद कल वो दिन हो जब हमें अपनी जानें कुर्बान करना पड़े। मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तुम चाहो तो रात की तारीकी में चले जाओ, कोई तुम्हें मलामत नहीं करेगा। दुश्मन मुझे चाहता है, तुम सबको छोड़ देगा। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर हजरत मुस्लिम बिन औसजा उठे, कहा, क्या हम आपको छोड़कर जाएं? नहीं मौला, हमारी तलवारें पहले गिरती हैं, हमारी सांसें बंद होती हैं, लेकिन कदम पीछे नहीं हटते। फिर हजरत ज़हीर बिन काइन बोले, हमने दुनिया को छोड़कर आपको चुना है, अब मौत भी हमें आपसे जुदा नहीं कर सकती। हजरत हबीब बिन मुजाहिर, जिनके चेहरे पर उम्र के आसार थे, उठकर कहा, या हुसैन, अगर मुझे 100 बार जिंदा किया जाए और हर बार शहीद किया जाए, तब भी मैं आपका साथ छोड़ने का तसव्वुर नहीं कर सकता। ये वो रात थी जिसने तारीख को वफा का चेहरा दिखाया। इमाम हुसैन खामोश हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानते थे कि उनके साथियों की वफा किसी पैमाने में नहीं समेटी जा सकती। रात का आखिरी पहर था। करबला की खामोशी में कुरान की तिलावत, मुनाजात और आहों की आवाज़ें गूंज रही थीं। हज़रत कासिम अपने खैमे में तलवार साफ कर रहे थे। हज़रत अली अकबर आसमान की तरफ देख रहे थे और हज़रत अब्बास खेमों के गिर्द अलम थामे पहरा दे रहे थे। इमाम हुसैन ने आखिरी बार अपने बच्चों को देखा। हज़रत अली असगर को गोद में लिया, उनके चेहरे को चूमा और आसमान की तरफ देखा। ए रब, मेरे इन फूलों की कुर्बानी कबूल फरमाना, मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँच सकें।